वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा विषय है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। पर्पस कुछ ऐसा था व्हेन वी हैव सीन के कमर्शियल जॉब्स कम हो रहे हैं और अभी तो जैसे बड़े यूनिट है अखबार वगैरह भी कमर्शियल जॉब करने लगे हैं। तो व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस कमर्शियल जॉब टू द स्मॉल प्रिंटर्स? जो छोटे प्रिंटर वो क्या करेंगे? इंडिया के अंदर जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे टोटल 2.5 लाख प्रिंटर हैं तो लगभग 90% हमारे छोटे प्रिंटर हैं। उनके लिए क्या क्या रास्ते खुले हुए हैं? दैट वी हैव ट्राइड एंड सिंस अप्रैल वी आर ट्राइंग टू गाइड द पीपल that this is going to happen and solutions are with you. Solutions are definitely there अगर हम उन पर इस्तेमाल करना चाहें तो एक ही दो ही सोल्यूशन आते हैं। देयर आर वन थिंग, आइदर हम भी बड़े बन जाएं। जैसे आपने बचपन में वो कहानी सुनी हुई है कि अगर एक बड़ी मछली है तो 10 छोटी बड़ी मिलके भी तो बड़ी बन जाती हैं। तो अगर आप मिलके काम करेंगे तो आपकी भी प्रोडक्शन उसके इक्वलेंट हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू सेल एट द इकोनॉमिकल रेट। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू कम्पीट। अनदर वे इज टू प्रोड्यूस डिफरेंट। कुछ ऐसा करो जो बड़े लोग नहीं कर पा रहे, या कोई छोटी जॉब, पर्सनलाइज जॉब या इस तरह के कुछ भी किया जा सकता है। We have been guiding on both the fronts. Today we are going to guide you about networking, how to do work together. So today we have with us an eminent personality of the print world of the India. He has very big printing units, one in Mumbai and one in Silvassa. He is doing packaging. Very learned person, and is the president of Bombay Master Printer Association. Mr. Nitin Shah is with us. First of all, he has adopted this method because when he has seen that competition is there, I've been talking to him. पिछले कुछ दिनों इनसे बात हुई, then उसी बातचीत में they told me that they have gathered 5 or 6 printers with him to do the work jointly. The system which is adopted and which is very fruitful with it, they are earning too much. इनका जो margin of profit भी बढ़ गया और इनके पास काम भी ज़्यादा हो गया। And before going further, first I will like to introduce Dr. Nitin Shah ji. Nitin Shah ji, welcome to this Guftgu. And I'm thankful that you have spared time. You have to go today to Silvassa, लेकिन इन लोगों से मिलने के लिए आप हमारे पास आ गए। I'm very much thankful to you. And first of all, I would like to know what you are doing. अभी आपका जो जॉब सिस्टम क्या है, किस तरह का यूनिट है, क्या काम आप कर रहे हैं? Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank Kamal ji to organizing Guftgu like coffee with Karan तो नहीं बोल सकते, but I can say chai with Kamal ji. That will be good. Anyway, my chai is going to come on my table. Hopefully, Kamal ji, you will also have that chai. Yeah, definitely. Neither you or I can give chai to each other, but ultimately virtually also we can support each other. That's absolutely perfect. Okay, good afternoon everyone, friends. I am going to speak today in English as well as Hindi, so hopefully everybody is okay with my way of presenting. First of all, I would like to say something about myself and my company, what we are doing. My company is almost 50-year-old. We started in 1972. My father started this company. Later on, my elder brother Rajesh Shah, who joined this company, Kamal bhai knows him very well, if I'm not wrong. He joined in 1975, and he is very much strong today also, and he is working as a managing director of the company. He handles finance and marketing. I joined in 1985. From 1985 till today, I am developing most of the technical side, then new development, plant setup, customer handling, costing, and all. Okay, we have 2 units, one at Navi Mumbai and one at Silvassa. Navi Mumbai is 100% pharmaceutical plant. We supply only to the pharmaceutical company. Silvassa 60% pharmaceutical. Rest of the capacity we do liquor, cosmetic, perfumes, food products, electricals, and kitchen cartons, kitchen foil cartons, and like this, and even hosiery and all also we are doing. So this is a basic background. We have Navi Mumbai 40,000 square feet and Silvassa we have like 50,000 square feet.
Total work strength, I'm having 650 people. My office and pre-press is at Mumbai, Andheri. And both the plants are operating on individual. And my team, both the place are available. They are handling my both the show. And I'm managing from my office. Once a month, both the plant I visit, if anything is essential. Otherwise, I am mainly operating from office. But prior to that, I have struggled a lot to come up to this stage. I have almost worked for 12 years, non-stop. Even Sundays also, I work 365 days, except Republic Day, Independence Day, and other some few festivals, holiday, where I have to keep close. And I used to work in the morning till late night. Many times I used to go till next day evening also. And I will not go much in detail, but only one thing I will tell you. The very first day when I went to my office, I sat on my daddy's chair. Like, you सेठ का लड़का हूँ, तो सेठ की कुर्सी पे तो बैठना चाहिए, on that way. My father came from the customer outside visit, finish करके आ गए. Then I got up, he sat on the chair. He finished his routine and we were having lunch. He only told me one thing. ये चेयर तेरी है, तेरे को कोई इस पे उठा नहीं सकता, बट तू अपने आप को उससे लायक बन, पहले चेयर के ऊपर बैठने के लिए लायक बन. ये बाहर जो मशीन के शोर सुनाई दे रही है ना, शोर बदली होगा तो अपने को मालूम पड़ना चाहिए कि शोर क्यों बदली हुआ है, मशीन में क्या तकलीफ हो रही है. सो दैट इज द वे यू शुड फर्स्ट मेक योर सेल्फ फिट फॉर दैट पोजिशन, देन कमांड दैट पोजिशन. So that was the day I have understood the value of the chair. Today also I follow the same. I don't sit on anybody's chair. Even my store person, though I'm a owner of the place, company, but I can sit on his chair, but no. What work he is doing that he can do better than me. So you have to respect the chair of that position. Owner हो बराबर है, but आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है, जो पोजीशन पे है, वो हर एक उनका काम आपसे बेटर कर सकता है. दिस इज व्हाट माय प्रिंसिपल. और वैसे ही जब 85 के बाद हर एक स्टेज से पास हुआ, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम द वेयरहाउस एंड फाइनल आई स्टार्टेड फाइनेंस एंड मार्केटिंग. दिस इज द माय जर्नी इज. ओके कमल जी. Thank you Nitin bhai, and wonderful thing. First thing we came to know from you, and that is the most important thing, respect the workers. Because definitely generally what we feel that we know better than the worker, and that is the cause of our non-progressive things, and but we remain behind. And why the people like you rose that thing. So that's a nice thing for all of the people to understand. They may know better than us and try, and we must make in our mind that they would definitely know better than us. So Nitin bhai, that is one thing. Student was running and everything was going on. How this idea came to your mind that you can join other printers to get their job, jointly get their jobs? How this idea came to your mind? See, basically, before we start this subject, I would like to go 30-40 years behind. When we were studying, when we were in the school, that time our mother always used to give us something to eat. Okay? And she used to say, अपने दोस्त से मिल बांट के खाना. ओके, अकेले नहीं खाना. जो आजकल की बात अलग है, आजकल की माया बच्चे ये लोग को बोलती है बहुत महंगा है, तेरे लिए लाई हूं, खाना अकेले चुपचाप, किसी को नहीं देना. तो वो आगे जाके लाइफ में आदमी वैसा ही बन जाता है. हमारे बचपन में जो हमको बड़े लोगों ने सिखाया है कि मिल बांट के खाना तो हर एक के लिए अच्छा होगा, सेम प्रिंसिपल हमें यहाँ अप्लाई करना है. लास्ट बहुत सारे साल से, सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, ओके, वी आर सीइंग दैट शिवाकाशी में, फलाना में, यहाँ पे एक बहुत सारे क्लस्टर्स बन रहे, प्रिंटिंग क्लस्टर्स बन रहे, ये वो. व्हाट इज दैट बेसिकली क्लस्टर्स? गवर्नमेंट लैंड देती है, सर्टन फाइनेंस देती है, अब एक जगह पे सब कंपनियां आओ काम करो. बट वो जो सब कंपनियां वहां काम करती है, रियली दे आर शेयरिंग देयर बिजनेस विद अदर्स, और स्टिल दे आर वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट बट अंडर one roof or under over one land. सही है ना कमल जी? If I'm wrong, just let correct. थोड़ा सा डिफरेंस आ गया नितिन भाई. जो आप क्लस्टर की बात कर रहे हैं वो पहले ऐसा था गवर्नमेंट का, लेकिन ये एक्चुअली कुछ हमने इंटरवेन किया तो गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया. अब ऐसा नहीं है. अब वो करेंगे आप, जैसे हमने लुधियाना में क्या किया कि हमारी एसोसिएशन ने
पूरा लुधियाना को we get it declared as a printing and packaging cluster. Whole of the Ludhiana is a printing and packaging cluster. Agree. सही बात. Any group can be formed and they can establish their unit. And you get fund from the government. And this, previously it was a thing that all the unit will be come at same place and then the cluster will be there. That concept was not working with the government. So now government, I think, agreed. 15 years back the rule has changed now. So ultimately आप एक ही जगह पे समझो कि इंडस्ट्री सब जैसे कि समझो सिटी में बॉम्बे मास्टर प्रिंटर्स एसोसिएशन है, जैसे आपका ओपा का है ना, या लुधियाना का है, वह सब आप लोग मिलके क्लस्टर बना दिया, गवर्नमेंट को अप्रोच कर दिया फंड लेके. बट दोस्तों आई वांट टू टेल यू वन थिंग. सिंस लास्ट 10 years वर्ल्ड हैज ओपन वेरी मच टू द इंडिया. हर रोज नई नई डिमांड आ रही है, हर एक अपनी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं. आर आवर इंडियन प्रिंटर्स आर दैट कैपेबल टू फाइनेंस फॉर ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ देयर कस्टमर? नॉट एट ऑल. तो क्या करना चाहिए उसके लिए? आज हम लोग एसोसिएशन बनाए हैं, बट कितना हम लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते बताइए. आज जैसे पूरे इंडिया में कम से कम 1000 एसोसिएशन हो गए, राइट कमल जी? जी. हर एक एसोसिएशन का मेंबर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करता है? एक बड़ा सवाल है. इज ए बिग क्वेश्चन. जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अंडरस्टैंड, जब तक हम खुद दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे ना, दूसरा हमारे पे भरोसा नहीं करने वाला है. फर्स्ट वी शुड लर्न टू ट्रस्ट अदर. वी शुड क्रिएट दैट एटमोस्फियर जो सामने वाला हमारे पे भरोसा करने लगे. एक तो सही बात है कि वक्त से पहले और तकदीर से ज्यादा तो किसी को नहीं. सही है. और कई लोग बोलते हैं कि मैं विजिट पे, मैं तो सबको बोलता हूँ आओ हमारी कंपनी विजिट करो. कंपनी में विजिट करने से, तुम किसके लिए काम करते हो देखने से, अगर काम मिलता होता तो हर एक जन आज बड़े बन जाते. हाँ, बिल्कुल. ऐसा नहीं होता है. हर एक को अपनी काबिलियत के हिसाब से काम मिलता है. आज किसी के पास प्रोडक्शन की काबिलियत है तो किसी के पास मार्केटिंग की काबिलियत है. ऐसे बहुत कम कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी ग्रो हो चुकी है, जिनके पास सब तरह के काबिलियत है. आज मैंने देखा है इतने सारे प्रिंटर भाई है मेरे यहाँ पे हिंदुस्तान में, हर एक की अलग अलग काबिलियत है. कोई माल बेचने में बहुत ही होशियार है, कोई प्रोडक्शन में बहुत ही होशियार. तो दोस्त, जो आदमी प्रोडक्शन में होशियार है, जिसके पास कैपेसिटी है बट वो काम नहीं ला सकता, तो डेफिनेटली व्हाई ही शुड नॉट अप्रोच द नोन प्रिंटर हु हैज एबिलिटी टू गेट द वर्क बट ही डोंट हैव कैपेसिटी. सिंपल यार. तेरा कस्टमर तू मेरा कस्टमर बन जाए, बात खत्म. लेट्स वर्क टुगेदर. तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट शुरू किया, आपकी कॉफी नहीं आई? मेरी तो आ गई वैसे. मेरी आ गई सर, ऑलरेडी एक सिप ले चुका हूं मैं. अच्छा, वो जो आपने ये कॉन्सेप्ट, हाउ यू स्टार्टेड इट, जैसे आप लोगों ने आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली. जब बहुत साल पहले की बात है, एक दिन मेरी खुद की एक मशीन बंद हो गई थी और मेरे पास 2840 का तब फॉर्मेट था. तो टुडे उस टाइम पे क्या हो गया, वहां पे मेरे एरिया में एक ही प्रिंटर था जिसके पास बड़ी मशीन. ओके. तो अभी मैं करूँ क्या? तभी मेरे को भी वैसा ही डर था, मैं उसके पास काम करागा तो मेरे कस्टमर के पास पहुंच जाएगा. तो ओके, तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, रिस्क लेते हैं. मैंने उसको फोन उठाया, दोस्त मेरी मशीन बंद है, वो यूवी कोटिंग करवाना था, मेरी मशीन बंद हो गई. मैंने बोला आप मुझे करके दोगे क्या? अरे नितिन भाई भेज दो, क्यों नहीं करेंगे हम. मैंने उसको भेजा, उससे दूसरे दिन करके दे दिया. तो तब मुझे लगा ये आदमी ने मेरे से दिया, और थोड़ा टाइम मेरे को दिन में डर लगा रहा कि ये शायद, बट कुछ दिन हो गए, उसने मुझे फोन किया, मेरा भी ऐसा कुछ इश्यू, कैन यू हेल्प मी? मैं डेफिनेटली, क्यों नहीं हेल्प. तो उस टाइम पे हेल्प तक बात थी, है ना. एक बार हमने अगर किसी की हेल्प कर दी तो उसका पैसा क्या लेना, वो हिसाब से हमने एक दूसरे का सपोर्ट किया. एक दिन क्या हो गया, मैं मेरे कस्टमर के पास गया था मिलने को, तो वो वहीं पे बैठा हुआ था. तब मालूम पड़ा हम दोनों एक ही कस्टमर के लिए काम करते हैं. तो वहां पे हम लोग बाहर बैठे थे सोफे पे, हाय हेलो किया, बोला क्या हो गया, आप भी काम करते और बहुत सारे काम करते. तो उन्होंने मुझे बताया, नितिन भाई एक बताइए, आपके पास जो कैपेसिटी है, आपके पास जो सहूलियत है, आपके पास जो हुनर है, वो किसी और के पास नहीं होगा, और किसी और के पास होगा वो आपके पास नहीं होगा.
तो क्यों ना हम हमारा एक दूसरे का हुनर सहूलियत मिल बांट के काम क्यों नहीं कर सकते? बहुत बेहतरीन आइडिया है। तो वैसे हम 2 जन ने ये काम शुरू किया। हमारे पास कुछ फैसिलिटी थी, उसके पास कुछ फैसिलिटी थी, तो वो काम लाता था, मैं करके उसको दे देता था लेबर के ऊपर, क्योंकि तभी एक्साइज वगैरह था, तो बहुत सारे कड़क नॉर्म्स थे एक्साइज। आज तो जीएसटी में तो बहुत चीज अलग हो गई है। तो वैसे हम लोग ने काम करना शुरू किया। बाद में कभी कभी अभी ऐसा हो गया कि हम लोग ओपनली बात करते थे, यार मैंने ये रेट से कोटेशन दिया है, तूने क्या दिया है? तो बोलते मैंने ये दिया है, तो देख ले इधर तेरी कॉस्टिंग गलत है या मेरी कॉस्टिंग गलत है, क्रॉस चेक करते, और हम लोग काम शुरू कर दिया। तो वैसे करते करते 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। बात जब कहाँ पे अटकी मेरे पास, जब मैंने सिलवासा में बड़ा प्लान डाला। अभी जैसे कि आपकी कैपेसिटी 40,000 स्क्वायर फीट की, और सडनली और एक प्लांट आप 1.5 लाख स्क्वायर फीट का डालते हो, तो डेफिनेटली फर्स्ट डे को आपके तो पास इतना काम आने वाला नहीं है। कुछ तो आप इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन पे भी करते हो आपका कस्टमर का ग्रोथ देख के। तो वहां पे मैंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की मशीनें लगाई, हालांकि जिसका मेरे पास काम नहीं था। मैंने फुल्ली यूवी प्रेस लगाई, मैंने कोरोगेशन का कंप्लीट ऑटोमेटिक प्लांट है वहां पे मेरे पास, ऑटोमेटिक लेमिनेशन मशीन लाई, फुल्ली ऑटोमेटिक फॉइल स्टैम्प। तो मैंने मेरे दोस्तों को बोला, यार मेरे पास ये सब फैसिलिटी है। तो बोला हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो हमने डिस्कस किया, भाई आप लोग अगर आपके कस्टमर के पास ऐसा काम हो तो लेके आओ, मैं आपको करके दे दूंगा। मेरे को आपके कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए काम ला रहे हो। ऐसे भी आप आपके मार्केट में अगर आपने सेल्समैन रखे हैं, मार्केटिंग टीम है, क्या करती है वो काम लाती है, आप लोग काम करते हो, जाता है। और आपका जो भी टर्म्स मार्केटिंग के लोगों के साथ है, जैसे उनको पेरोल पे रखना, पे प्लस कमीशन रखना, या सिर्फ कमीशन रखना, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पद्धति है। तो अगर वो बंदा काम ला रहा है, आप उसको आगे बेच दो और वो आगे अपना बेच देगा, और पेमेंट टर्म डिसाइड कर लो, उसको कब मिल रहा है पेमेंट, उससे आपको मतलब नहीं, वो आपको इतने दिन में पेमेंट दे देगा। तो आपका काम सिक्योर है, आपका पेमेंट सिक्योर है। रिजेक्शन की बात आती है, तब यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग कि रिजेक्शन किसके वजह से हुआ है। सो दैट पर्सन शुड टेक द रिजेक्शन। कुछ डिले भी हो सकता है, जैसे सपोज करो आपका को आप काम चल रहा है और दूसरे का काम थोड़ा अर्जेंट आ गया, हाउ यू विल कंट्रोल दैट? वो भी तो हो सकता है ना, आपस में कोई डिस्प्यूट का नहीं हुआ आपके जैसे 4-5 लोग हैं? कभी आज तक कभी नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है हमारे यहाँ पे कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग एक दूसरे का काम करते हैं। मैं भी दूसरे का मेरा काम बेचता हूँ, ऐसा नहीं। आज परिस्थिति ये है सर, दोनों कॉमन कस्टमर है दोनों के। ओह माय गॉड। उसके पास भी सेम जॉब है, मेरे पास भी सेम जॉब है। फर्क खाली उसका फॉर्मेट अलग है, मेरा बड़ा मशीन के हिसाब से बड़ा, फॉर्मेट छोटा है। वो कभी अटकता है तो वो बोलते नितिन मेरा ये जॉब छाप के दे दे यार। मैं बोला ठीक है, कुछ भेज मत, खाली कितना छापना बोलते, मैं छाप के तेरे को दे देता हूँ। यानी कस्टमर के पास माल पहुंचता है, उसका लेबल लगते हाँ का मैंने बनाया है, या मेरा कस्टमर के पास माल पहुंचता है कि उसने बनाया है। क्योंकि जहाँ पे कॉमन कस्टमर होते हैं वहां का कलर स्कीम से लेके सप्लाई सब एवरीथिंग सेम रहता है। खाली हम लोग क्या करते हैं, उसका जो लोगो लगाना है वो हिसाब से उसका लोगो लगा के छाप देते हैं। तो नितिन भाई, जो मैं थोड़ा अपने अटेंडेंट्स को थोड़ा एड्रेस कर लूं, the difference between the cluster which we are thinking and which is there, it is almost the things are same. What the जो cluster है गवर्नमेंट की तरफ से, first you have to purchase the land, then 20 people should be together of the same line, then you have to form a company, then you apply to the government, और government आपको they give the money to install the machine. But what about the machine जो already चल रही है? If we talk about any city, we are maybe in Ludhiana, maybe in Mumbai, the machine which are already running, and if they have the capacity, why not to use those machines? Perfect. Government money is different, and but I feel you can first be together, इकट्ठे होके काम शुरू करो, और after that apply to the government also for a better machinery, for a better thing you can apply. The thing is, जो आप लोगों के दिमाग में जो भी सवाल है इसके बारे में, प्लीज राइट द, बिल्कुल क्लियरली, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड क्रिस्टल क्लियर। नितिन भाई कुछ नहीं छुपाएंगे। आपको जो जो डाउट लग रहा है, इन्होंने क्या किया, ये 5-6 दोस्त मिल गए, अलग अलग उनके यूनिट हैं, उनका भी काम चल रहा है। जैसे इन्होंने भी बताया कि एक ही कस्टमर का एक ही काम हो रहा है, लेकिन उसके दोनों में उनका ऑर्डर अलग है, इनका ऑर्डर अलग है, उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करते। तो these type of thing can be developed.
इवन इन जालंधर, इन लुधियाना, इन होशियारपुर, एनी सिटी, आप अगर इकट्ठा मिलके काम करोगे, देन you will be able to compete the big printer. Otherwise, what will happen? A big printer, suppose we take the yesterday, only 3 days back, I've seen an ad in the your WhatsApp group that work will be now available at Jalandhar rate in Pathankot. What it means? That means Jalandhar कहाँ सस्ता हो रहा है, तो अगर आप पठानकोट में सस्ता नहीं करेगा तो जालंधर वाला आदमी पठानकोट में भी तो काम कर सकता है। इलाज ये है कि अपना दिल साफ करके इकट्ठे होकर काम करें ताकि दूसरा कोई अप्रोच ही ना कर पाए। दिस इज व्हाट ही हैज अडॉप्टेड। अब इनसे मैं आगे पूछना चाहूंगा कि इस तरह के काम करने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है आपको? देखो, मैं आपको हर एक को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो थोड़ा बेहतर वैसे समझ आएगा। कुछ साल पहले जब कमर्शियल प्रिंटर थे या नॉर्मल प्रिंटर थे, वो लोग क्या करते थे, एक 4 कलर लगा, ये 5 कलर लगा दी, एक कटिंग मशीन लगा दी, बाइंडिंग आउटसोर्स करते थे, या बाजू वाला कोई बाइंडर था उसको उससे काम करवा लेते थे, या किसी के पास सेंटर पिनिंग है तो सेंटर पिनिंग करवा लेते, और 3 नाइफ कटर है तो उससे करवा लेते थे, काम होता था हर एक। बाद में कंसेप्ट आया, कस्टमर लोग पूछने लगे कि भाई आपके पास हर चीज इन हाउस हो तो हम काम देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो गया, जिनके पास कैपेसिटी थी या काम का फोकस था या विजन था, उन लोग ने अपना फाइनेंस का बंदोबस्त किया और बहुत लोगों ने अपने सेटअप भी लगाया। बाद में एक दौर वापिस आया कि कस्टमर देखने लगा भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, बाद में वो सेटअप नहीं देखता है उसका क्या है क्या नहीं। जहां तक कस्टमर की रिक्वायरमेंट का 70% या 65% तक का सेटअप आपके पास है, बाकी 35% सेटअप दोस्तों के साथ मिलकर पूरा कर सकते हो। 110% ये चीज आप मान के चलो साहब। मैंने एक मशीन जो वहां पे लगाई है, मैंने किसी और के लिए लगाई है। विंडो पैचिंग भी मेरे पास है, बैग एंड बॉक्स मशीन भी मेरे पास है। मेरे पास काम नहीं था, मेरा दोस्त बोलता यार तू लगा ना, तेरे पास जगह है, मैं तेरे को काम दूंगा, ठीक है, भरोसा कर लिया, लगा दिया, काम चल रहा है, विंडो पैचिंग वगैरह अच्छा तरह से चल रहा है। तो दोस्त, ये सब अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, छोटे छोटे। आज आपके पास, सबके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों के काम कम होंगे, नई तरीके डिमांड मार्केट में आने वाली है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे आएंगे जो हाइजीन के लिए है, हर एक का प्रमोशन होने वाला है, पैकेजिंग होने वाला है, हर एक लोग अलग अलग टाइप की चीजें मांगने वाले हैं। तो हमें नजर रखनी है हमारे ग्रुप में हमारे कितने दोस्तों के पास क्या क्या है, बैठना है मिलके, मैं ये करूंगा, तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, और अपना ऑर्डर लेना है और एग्जीक्यूट करना है। मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, वो दिमाग से हटा दो। खाली एक दूसरे पे ट्रस्ट रखो। जो कस्टमर अगर किसी से डायरेक्ट जाके लेके आता है बिजनेस, ठीक है, हमने वो उसे अप्रोच नहीं करना। हमारी कैपेसिटी फुल हो रही है, हमारा कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, हमको मालूम है भाई मैं इसके साथ काम करूंगा तो महीने के 5 दिन ये मेरे ले लेगा, दूसरा मेरे 5 दिन ले लेगा, मेरे खुद का 10 दिन का काम है, तीसरा 3 दिन ले लेगा। ऐसा करके 25, 26, 27 दिन का आपका प्लानिंग सेट कर दो, शांति से रहो, और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे काम बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ, नए मशीन लाओ। अगर एक टाइप की मशीन से 10 जन का काम होता है तो 10 जन को लेने की जरूरत नहीं है। लेने की जरूरत है तो एक दूसरे में विश्वास लेना जरूरी है। एक दूसरे में विश्वास पैदा करो कि तेरा काम तू लेके आ, मैं तेरे को करके दे दूंगा। वेरी सिंपल है। माल खाली आपसे लेके बेचने वाला का परसेंटेज अलग रहेगा, आपका रिस्क ज्यादा है क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह सब आपका ले रहा है तो अलग रहेगा। उसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, उसको खाली पेमेंट की सिक्योरिटी करनी है। ये सब मिलके आपस में बैठ के कर सकते हो। उसके लिए गवर्नमेंट के पास जाके अप्रोच करने की कोई भी जरूरत एट मोमेंट नहीं है। वो प्रोसेस आप करते रहो, जब होगा तब होगा। बट अपने को आज की तारीख में तो अपने पास इतना स्पेयर कैपेसिटी है, क्या करो उसका? भरोसा करो, दोस्तों पे भरोसा करो, फेलो प्रिंटर पे भरोसा करो और काम शुरू करो। नितिन भाई, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज तो भरोसा है। जब अगर
ट्रस्ट नहीं है तो कोई भी क्लस्टर नहीं चल सकता, कोई भी। अभी जैसे आप, मैं हैरान हूं, मैं बड़ी, हमारे लोग भी बड़े हैरान हो गए, हाउ इज इट पॉसिबल, एक ही जगह पर एक ही कस्टमर का दो बंदे काम कर रहे हैं, एक ही प्रेस में हो रहा है, फिर भी उनके आपस में कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बिगेस्ट थिंग बात वही है जो नितिन भाई ने शुरू में कही कि किस्मत से ज्यादा आपको मिल नहीं सकता, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा। हाँ नहीं, मैं और तरह कह रहा हूँ, किस्मत से ज्यादा भी मिल सकता, कम रहेगा नहीं, तो जितना लिखा उतना मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, बिजनेस cannot build relation. If you try and build the relation, business will automatically start and your empire will automatically come. रिलेशन बढ़ाओगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, खाली बिजनेस करने जाओगे तो रिलेशन नहीं बनते, रिलेशन करने से बिजनेस बनते हैं। सही है कि नहीं कमल जी? इसमें थोड़ा एक पॉइंट और भी है, अगर हम ज्यादा रिलेशन, जैसे हमारे पंजाब में तो रिलेशन ही रिलेशन है, बिजनेस नहीं है, अगर हम रिलेशन रखते तो बिजनेस होता नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं होती। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूंगा, रिलेशन यानी बिजनेस के रिलेशन बढ़ाने की बात करूँ। सर जी अभी आप जैसे कमल जी आपके, अब मेरा आपका रिलेशन अच्छा है, बाकी प्रिंटर से मेरा रिलेशन अच्छा है और मुझे मालूम है इसके पास ये कैपेसिटी, तो कल अगर मेरा आपका रिलेशन अच्छा रहेगा तो मैं आपको बोलूंगा कमल जी यार ये काम कर दो, आप मना नहीं करोगे। तो मेरे को वो बिजनेस मिल गया, मैंने कर दिया, आपके थ्रू हो गया, तो मेरा बिजनेस भी हो गया, आपका भी बिजनेस हो गया, रिलेशन भी गाढ़े बन गए। हाँ, दैट टाइप ऑफ रिलेशन, प्रोफेशन एक्चुअली। जो नितिन भाई आप कह रहे हो, बेसिकली बात वही है, इलाज तो है इकट्ठे मिलके काम करने का। रीजन जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पहले तो जैसे जैसे डिजिटल बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन, आई मीन टू से नॉट द डिजिटल प्रिंटिंग मशीन, आई मीन टू से डिजिटाइजेशन। जैसे पहले न्यूज़पेपर छपते थे, अब आप नेट पर ही देख रहे हो न्यूज़पेपर। रेलवे की टिकटें छपती थी, अब को आपको ईमेल आती हैं। एयरलाइन की 5-5 पेज की टिकट होती थी, अब वो खत्म हो गई। तो प्रिंटिंग का कोई ना कोई तो छाप रहा था, सम प्रिंटर वाज प्रिंटिंग, एनुअल रिपोर्टें छपती थी, खत्म हो गई। तो प्रिंटिंग का काम ड्यू टू डिजिटाइजेशन श्रिंक हो रहा है। दिस वाज ऑलरेडी हो रहा था वर्ल्ड में, इट वाज ए प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाज फेसिंग 5 to 6% रिसेशन। इंडिया में रिसेशन नहीं था क्योंकि अभी एजुकेशन पूरी नहीं थी, वी आर ग्रोइंग एट 3% or somewhere 4% also. But now after COVID the things are going to change completely. You know, अगर आप छोटा सा एग्जांपल लो, we have seen the newspaper that was Dainik Bhaskar 3-4 days back. They have printed an ad that they want to do the commercial job, please send the jobs to us. So if they will start printing the job, what will happen, you can understand. क्या होगा? कमल जी, ये एक टेम्पररी फेज है जी। हर टेम्पररी फेज चला जाता है, बुरा वक्त जाता है, अच्छा आता है, अच्छा जाता है, बुरा वक्त आता है, ये कुदरत का नियम है, ना उसमें आप या ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अभी हम एक थोड़े से टाइम के लिए कोविड पीरियड को बाजू में रखते हैं। आप मुझे बताओ इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन पेपर का हर साल कितना बढ़ रहा है? कमल जी आप तो डॉक्टरेट किए हो ये सब में, आपको तो मेरे से ज्यादा नॉलेज है। स्टिल वी आर वेरी बिहाइंड, अभी तो आगे से बढ़ रहा है। हर साल पेपर का टनेज कितना मार्केट में बिक रहा है जी। हर साल नई पेपर मिले कितनी आ रही हैं, हर एक पेपर मिले अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। पहले एक ही प्लेयर था मशीन बेचने वाला, अभी 2 प्लेयर 3 प्लेयर 4 प्लेयर आ गए, अभी चाइनीज की मशीनें भी बहुत सारी आ गई और लोग फिर भी खरीद रहे हैं। राइट। तो उसका मतलब कंजम्पशन कहीं ना कहीं तो बढ़ रहा है। राइट। अपने को ये की है कि पहले जो हम लोग घर पे बैठते, सुबह 2-4 फोन कर दिए, आ गया, काम हो गया, शाम हो गए, घर चले सो गए, वो नहीं होने वाला साहब। अपने को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, कौन से एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो देखना पड़ेगा, कौन सा सेगमेंट में क्या रिक्वायरमेंट निकल रही है वो देखना पड़ेगा, वो हिसाब से काम करके अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। बम्बई जैसे शहर में लोग बहुत बार बोलते कि कमर्शियल प्रिंटिंग इज डाइंग, कमर्शियल प्रिंटिंग। हमें एक चीज देखनी है कि भैया पहले खाली कमर्शियल प्रिंटिंग कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही होती थी, बड़े सिटी में। आज हिंदुस्तान के हर छोटे कोने में भी कमर्शियल प्रिंटर आ गया है और हर एक जन अपने हिसाब से काम कर रहा है। लास्ट हमारा जीसी मीटिंग इम्फाल में हुआ था। सर जी कितने प्रिंटर है वहां पे बताइए? हैं? बहुत है।
है ना? बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या हुआ, देयर आर टू थिंग्स, Yeah. कमर्शियल प्रिंटिंग की जोरी का अलग बात है, लेकिन कैपेसिटी ऑफ द प्रिंट इज इंक्रीजिंग। अभी देखो, जो पहले अगर मैं अपने सिटी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लुधियाना, आई थिंक इफ वी गो 10 or 15 years back, there was only 1 or 2 4-color machines. Now there is no house which don't have at least 2 4-color machines. So capacity has increased. So with the otherwise the industry is not increasing in that fold. If they are increasing, they are getting work done from other cities also. सर एक बात सॉरी कमल जी, हर साल आप देखो कितनी नई कंपनियां रजिस्टर हो रही हैं। राइट, यू आर राइट। हाँ, हर साल इंडिया में कितनी नई फर्म्स खुल रही है, कितनी नई कंपनियां रजिस्टर हो रही है। हर एक कंपनी का, हर एक फर्म का कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट निकलता है। बिल्कुल। एक साइड डिजिटाइजेशन हो रहा है, आई डोंट डिनाई फॉर दैट, एक साइड, बट रिक्वायरमेंट भी तो जनरेट हो रही है ना। दूसरी बात, मेरा था थोड़ा सा फाइनेंस का अरेंजमेंट हो गया, मैं थोड़ा कैपेसिटी बढ़ गई, चलो एक मशीन बाय कर लो। उससे अच्छा मेरे दोस्त के पास काम नहीं है, मशीन है, क्यों मैं उसके साथ मिलके काम नहीं करूं? आप बताओ मेरे को। चलो, तो जो एक काम के पीछे 10 जन है, कंपटीशन कर रहे हैं, हम एक दूसरे का गला काट रहे हैं अपनी मशीनें चलाने के लिए। अरे भाई तेरे पास मशीन में बाय नहीं करता हूं, चल मैं काम लाता हूं, तू मेरे को करके, तो 2 जन की तो कंपटीशन कम हो गई 10 में से। तो हम लोग ये चीज क्यों नहीं कर सकते, बताओ मुझे, व्हाई वी आर नॉट डूइंग दैट? क्यों हम बड़े प्रिंटरों से डरते हैं? आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास स्पॉट यूवी का फैसिलिटी नहीं है, मैं जॉब लूंगा, मेरे बाजू वाले के पास है, उसको बोलूंगा तू करके दे मेरे को, तेरा चार्ज मैं दे दूंगा, मैं मेरे कस्टमर से ले लूंगा, खलास। तो उसको भी लगेगा मेरे पास सिक्योर बिजनेस है, तो मैं ग्रीडीनेस क्यों करूं जाओ और उसका बिजनेस तोड़ने के लिए? क्योंकि मैं खाली स्पॉट यूवी करके देता हूँ, बाकी की चीज तो वो कर रहा है, तो उसको मालूम है वो चीज कैसे बेहतर वैसे की जा सकती है। इट्स अ वेरी सिंपल साइंस, वेरी सिंपल। खाली भरोसा पैदा करो, एक दूसरे पे ट्रस्ट करो। बस एक ही चीज जरूरत है, भरोसा, सिर्फ एक चीज की जरूरत है, बाकी सब। और लालच पे लगाम लाओ, अपना नसीब में जितना होगा और वक्त से पहले नहीं मिलने वाला। जिस दिन हम सब ये समझ जाएंगे ना सर, हम लोग सब सुखी हो जाएंगे। यू आर राइट, 100% यू आर राइट। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज गिव द एडवाइस। मैं जहां भी जाता हूँ मेरी यही बात होती है कि इससे ज्यादा नहीं मिलना, फिर देखो कम भी नहीं रहना। मैं तो कहता हूँ भगवान ने उससे कम भी नहीं देना। एक्चुअली क्या है नितिन भाई, होता क्या है कि मेरे को मेरे हिस्से का 1 रुपया मिल रहा होता है, आपके 10 रुपए में छीनने की कोशिश करता हूँ, वो मिलते हुए नहीं, मिलने भी नहीं है। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। अगर मैं विश्वास करूं कि मेरे हिस्से का मेरे को मिल गया, then there is no problem. Yes, progress. क्या होगा कमल जी, आप, मैं सोचूंगा कि मैं सामने वाले का भी ले लूं, तो मेरे को तो नहीं मिलेगा, वो भी खोएगा, और फायदा कोई तीसरा लेके जाएगा। Yeah. So और समझो, आज मैं बताऊं, एक बड़ा प्रिंटर और 10 छोटे प्रिंटर एक हो जाएगा, तो एक बड़े प्रिंटर से कई गुना बड़ा प्रिंटर बन सकता है। सर बड़े से भी बड़ा बन जाते हैं। उसका कारण है कि एक प्रिंटर ने ऑर्डर एक ने बुक करना है, 10 बंदे ऑर्डर बुक करने वाले हैं। आज लॉकडाउन में एक समझो जितने बड़े प्रिंटर है उसको प्रॉब्लम ज्यादा है, छोटे को कम है। उसको बड़ी जगह का मेंटेनेंस देना है, रेंट पे हो तो रेंट देना है, खुद की है तो मेंटेन करना है, प्रॉपर्टी टैक्स भरना है। आपको जैसे 600 बंदे की पे देनी है तो करोड़ों में तो वही चले जाएगी। आप सोचो उसके जगह पे 10 छोटे प्रिंटर है, जिसके पास 50 आदमी है, 10 एवरेज तो अगर नितिन भाई लगाए तो इंडिया की एवरेज हम 10 वर्कर लगाते हैं एज पर एवरेज। तो अगर हम एवरेज 10 की पे और 600 की पे, फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग विद ईच अदर ऑन दिस सब्जेक्ट एंड यू हैव एनी क्वेश्चन, हमारी बातचीत चालू रहेगी, लेकिन इसी बीच आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप लिखें, हम सवाल साथ साथ भी लेंगे, बाद में भी लेंगे। कुछ सवाल आ रहे हैं क्लस्टर के बारे में, तो वो मैं क्लस्टर जो गवर्नमेंट वाला उसके बारे में ज्यादा सवाल है। I will like to tell that regarding the cluster, जो गवर्नमेंट की स्कीम है क्लस्टर की, उसके अंदर आपको कम से कम 20 सेम प्रोफेशन के आदमी चाहिए, 20 minimum 20 people of the same profession, and you have to get your company registered under section 8 of section 8 में company register कराएंगे, that is be a, just like a private limited company, and after registering then you will be eligible to get that money. जो एक सवाल आ रहा था, वो पैसे आपको वापस नहीं करने, you don't have to refund that money, this is not refundable है, ना ही उस पर कोई इंटरेस्ट लगता है, and you can get up to 20 crore, 90% of the 20 crore you can get.
The system is very simple. First and foremost system है you have to be 20% together. तो सबसे पहले जरूरत तो इकट्ठे होने की दिल से. जैसे नितिन भाई ने कहा, the thing is विश्वास. 20 people जिनमें विश्वास हो, अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो क्लस्टर वैसे ही बन गया. Yes, you can. अभी जैसे गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, आई मे टेल, सबसे पहले तो कंपनी बनेगी, देन आप उसका एक प्रोजेक्ट बनाओगे विच यू विल सेंड थ्रू योर स्टेट गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट. दैट विल बी टेकिंग टाइम फॉर अप्रूवल. एटलीस्ट अप्रूवल करने में सालों लग जाते हैं, 1-2 साल तो मामूली बात है. तब तक क्या करेंगे? तब तक काम तो शुरू करो, वो भी कर लो, उसको करो, उसका कोई मुश्किल नहीं है. और इफ एनी हेल्प यू रिक्वायर फ्रॉम मी, वी हैव ऑल द पेपर्स विद अस. आपको सारा क्लस्टर कैसे बनना है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इवन द DSR is with us. We can supply the DSR also, diagnostic study report which you have to prepare. DPR is already lying with us. That's not a problem. But that is, since that will take time, till that time एक विश्वास पैदा करके 20 बंदे तो या 20 की जरूरत नहीं है. नितिन भाई तो 6 लोग, 5 या 6 लोग से ही काम कर रहे हैं, तो उससे इनका काफी काम बढ़ गया. At that last meeting he was telling, I wish that कम से कम 2-3 और आ जाए तो और भी कैपेसिटी बढ़ेगी. अभी देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे अभी बात कर रहे थे नितिन भाई, मशीन की प्रोडक्शन एक होता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन. एक मशीन एक दिन में 1 लाख कागज छाप सकती है. अगर आपके पास कागज ही 10,000 है तो क्या करोगे? वो 10,000 कागज 1 लाख की कीमत में छपा तो उसका कोई फायदा नहीं है. जब तक 1 लाख कागज नहीं छपेगा मशीन की कोई वैल्यू नहीं है. तो अब आप जितनी मर्जी बढ़िया से बढ़िया मशीन ले लो, यू आर बाएंगे, कोई ले लो हैंडलबार, कोई भी जिसकी बड़ी स्पीड है, लेकिन काम ही नहीं उतना. काम कैसे होगा? अगर 5 लोग इकट्ठे हो जाए तो काम 5 होगा, आ गया ना. फिर 5 मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फिर 5 की जरूरत नहीं पड़ेगी. और एक भी मशीन तभी चलाना जब उतना काम है. जैसे इन्होंने पहले कहा कैपेसिटी के, अभी जैसे विंडो पैचिंग की बात कर रहे थे, इवन ही डोंट हैव द वर्क ऑफ विंडो पैचिंग, समबडी अदर वाज हैवी, ही टोल्ड हिम टू इंस्टॉल अ मशीन, आई विल गिव यू द कैपेसिटी. So while installing a machine, we have to see whether we have that capacity or not. We should have over capacity. Over capacity, at least I always say at least 25% more capacity you must have. No, I mean 25% more work to have as per the capacity. Then you can run the machine. Sometimes there is a breakdown. Sometimes plate is not coming. So at least 25% more job is required. मेरा कहने का मतलब, अगर एक मशीन 1 लाख छापती है तो आपके पास रोज 1,25,000 काम होना चाहिए. तभी उस मिशन का फायदा, तभी इकोनॉमिकल है, तभी मार्केट में कम्पीट करेगी. सही बात है. तो ये बातें हम करते रहेंगे. बट इन द मीन टाइम, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी टॉपिक पर रिगार्डिंग दिस क्लस्टर और जो मिलके काम करना, यार मिलके काम करने में तो गलती वो हो ही नहीं सकती. हमारे बुजुर्ग के अलावा भी अगर कोई प्रिंटिंग रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं. लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है, तो आई वांट टू, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, तो मैं टॉपिक पर रहना चाहता हूँ. वैसे तो आप रोज कुछ भी पूछ सकते हैं. दैट्स नॉट अ थिंग. सो फ्रेंड्स, वी विल बी टॉकिंग फर्दर ऑन दिस इशू. नितिन भाई उसी पर बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर. अभी जैसे काम आता है तो वर्क किसी और का आ गया, जैसे आप लोग 5 या 6 मिलकर काम कर रहे हो, तो प्रेफरेंस कैसे जॉब की मिलती है? हाउ यू गिव द प्रेफरेंस द वर्क? सी प्रेफरेंस ऐसा होता है कि जैसे कि अभी आपके पास क्लाइंट से आप जब काम लेते हो तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम प्लानिंग होता है कि भाई इतने दिन में आपको मुझे काम देना है. कोई लीड टाइम देता है, कोई 5 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का, डिपेंड्स अपॉन द जॉब. किसी को नेक्स्ट डे भी चाहिए होता है. और आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है, आपके पास जो भी कैपेसिटी हो ना, ऑलवेज व्हेन यू हैव अ फिक्स बिजनेस, आपको मालूम है इतना बिजनेस आपको हर महीने आना ही है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा कैपेसिटी लेके चलो. क्योंकि अर्जेंस एक्स्ट्रा कैपेसिटी 2 चीज के लिए. आप जैसे ग्रो करने चाहते हो, आपका कस्टमर भी हर साल ग्रो करना चाहता है. अगर आपका कस्टमर हर साल ग्रो कर रहा है तो उसके साथ आपको ग्रो होना पड़ेगा. अगर आप ग्रो नहीं हुए तो वो कस्टमर किसी और को ढूंढेगा, बट अपना ग्रोथ नहीं रोकेगा. अभी कस्टमर बड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनी, हम छोटे प्रिंटर है, 10-20 करोड़ का काम करने वाले, हम हर साल इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? ऐसे टाइम में अपने को मालूम है, मेरा दोस्त भी है साथ में, उसके पास भी एक कैपेसिटी है, तो आप दोनों मिलके बात करो, मेरा एक कस्टमर का इतना काम आ रहा है, तेरे पास इतना कैपेसिटी है, उसमें से 10% कैपेसिटी मुझे देगा क्या, 20% कैपेसिटी मुझे देगा क्या? ऑन दैट बेसिस आप बुक करके रखो कैपेसिटी, और हर एक की प्रायोरिटी के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो.
अभी आपका नॉर्मल काम चल रहा है और सडनली कोई कस्टमर आ गया और मुझे किसी भी हालत में कल का कल माल चाहिए, तो आप दूसरे किसी का बाजू में रख के उसको रिक्वेस्ट करके दूसरे का काम निकालते हो। तो वन ऑफ द केस में ऐसा अपने दोस्तों में भी हो जाता है कि भैया चल तेरे को इतना अर्जेंसी ना, मैं मेरे कस्टमर को बोलता हूँ भाई 1 दिन के बाद देता हूँ, तेरा काम मैं निकाल के दे देता हूँ। सो इस तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और आता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा भी था, अगर सपोज करो आपने वन ऑफ द प्रिंटर है गिवन यू जॉब एंड मे बी ड्यू टू योर फॉल्ट, मे बी ड्यू टू एनी अदर फॉल्ट, द जॉब इज नॉट प्रिंटेड एज पर द एंड दैट इज रिजेक्टेड, हु विल फेस दैट रिजेक्शन? सी, अगर मैंने वो जॉब लिया और मेरी निग्लिजेंसी वजह से मेरा दोस्त का जॉब खराब हुआ है, तो ऐसे टाइम में हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट मैं दे दूंगा उसको, क्योंकि उसका तो सिर्फ ऑर्डर लगा है ना, माल तो मेरा लगा है। yes. या उसने मुझे रॉ मटेरियल दिया है तो उतना मेरा रॉ मटेरियल यूज करके उसका जॉब में करके दे दूंगा। okay. इंक तो मेरी है, प्लेट मेरी है, सब कुछ मेरा है। अगर मैं उसके रॉ मटेरियल में मैं सिर्फ लेबर कर रहा हूँ तो मुझे मेरा रॉ मटेरियल वापरना, बट ऐसा हर टाइम नहीं होता है। नहीं, अभी जैसे कि देखो कई बार क्या होता है, कमर्शियल प्रिंटिंग में क्वांटिटी कम रहती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम रहता है, लेबर ज्यादा रहता है, तो वैसे टाइम पे एक्चुअल लॉस कम होता है, प्रॉफिट में आपका नुकसान। बट जहाँ पे लंबा जॉब हो, जहाँ पे रॉ मटेरियल का परसेंटेज ज्यादा हो, वैसे टाइम पे थोड़ा नुकसान होने की उम्मीद ज्यादा है। तो इसके लिए हमें तो ये, अगर हमारा दोस्त का ऑर्डर नहीं और हमारा ऑर्डर रहेगा तो भी हमको तो वो भुगतना है। खुद का ऑर्डर रहेगा और हमारी गलती से रिजेक्ट हो गया तो भी हमारे सर पे ही आना है वो। तो एक और मेरे पास ये क्वेश्चन, ये हमारे लोकल है अनुज गांधी थ्रू के आया। दिस इज बेटर क्लस्टर that adopted by Shri Nitinji or with 5 other person, or cluster adopted by the press owner asking the subsidy of 20 crore. I've already replied about this. This is a very simple thing. This is not a, it's a system of working. सबसे पहले विश्वास पैदा करो, विश्वास पैदा होने के बाद आप ये काम तो इकट्ठा शुरू करो। अभी वेट क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट का पैसा तो जब आएगा तब आएगा ना, वो उसके लिए अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम, बट डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। उसके लिए 20 बंदे नहीं है तो 4-5 बंदे मिलके आप कुछ भी काम कर सकते हो, इकट्ठी परचेज कर सकते हो या इकट्ठा मिलके काम कुछ भी कर सकते हो। एंड इफ वन प्रेस हैज ए कैपेसिटी, उसके पास काम नहीं, अपना काम उधर से करा सकते हो। दिस इज व्हाट नितिन हैज डन। एक्चुअली प्रॉब्लम, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हल अपने आप, कहते हैं ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब हमें रास्ता ढूंढना है तो रास्ता मिल जाएगा। हाँ, अगर अड़चने ढूंढनी है तो अड़चने मिल जाएंगी, रास्ते तो मिलते ही हैं। तो जो आपने ये लिखा है 20 करोड़, डेफिनेटली दैट 20 करोड़ वी डोंट हैव टू रिफंड, दैट इज ए योर मनी, और 7 साल के बाद आप मशीन को बेच भी सकते हो। बट सबसे जरूरी बात 20% जिनमें विश्वास हो, वो भी तो चाहिए ना। उस मशीन पर भी काम चाहिए, तो काम कौन लाएगा, कहां से लाएंगे? तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सेम थिंग, है दोनों सेम ही है उसके अंदर। क्योंकि आपका अपना अभी जो मशीनें अभी लगी हुई हैं आपकी सिटी में, वो आप क्यों नहीं यूज करते? धीरे धीरे उनको यूज करो, शुरू करो, उसके बाद बेटर मशीन के लिए अप्लाई कर दो तो गवर्नमेंट भी आपको साथ देगी। अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम लोग 4 जन इकट्ठे हो गए जी और काम कर रहे हैं 6 महीना 8 महीना साल हो गया। सडनली किसी एक के पास रिक्वायरमेंट आ गई, यार ये टाइप का मुझे काम करना है। हमारे चारों में से किसी के पास भी नहीं है, बट चार में से किसी एक पहचान वाला जो उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती है, उसके पास वो फैसिलिटी है, तो वो 4 में से वो 5वां बन गया कि नहीं साथ में। तो कल उठ के और बाकी के 4 बंदों को अगर वही टाइप का काम मिल जाए तो लाके उससे कर सकता है। तो क्लस्टर में एक आदमी की बढ़ोतरी होगी। yes. ऐसे 1 बाय 1 करके आपका ग्रुप बड़ा करते जाओ, विश्वास बढ़ाते जाओ, ग्रुप बड़ा करते जाओ। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब तक गवर्नमेंट का 20 करोड़ आएगा तब तक आप ऑलरेडी रेडी हो जाओगे, खाली पैसा लग काम शुरू करो, दैट्स ऑल। अभी there is one question, what is the suggestion for only job work printers? The printer who are working only job work, the printer who are working for others, so similar, they are already doing the same thing. What are the suggestion for only job work printers? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक हमारे मित्र है, मैं आपको बताता हूँ, हमारे ग्रुप में वो भी एक है। 15 साल ही वॉज प्योरली जॉब वर्कर। लोगों के से ऑर्डर आते थे, वो छाप के दे देता था। उसने यूवी प्रेस भी लगाया, लेमिनेशन मशीन भी लगाई, पंचिंग भी लगाई, पेस्टिंग भी लगाई, बट सब जॉब वर्क।
जी। उसका बेटा आया फॉरेन से पढ़ के, उसने बोला पापा सब है, जॉबर स्टिल आप करते हो? तो बोलते हैं मेरे को सब पचड़े में नहीं पड़ना है। अच्छा। ठीक है, तू यंग ब्लड है, तुझे जो करना है कर। पापा मैं ऑर्डर्स अच्छे ला सकता हूँ, पर वो सब करने के लिए हमारे पास कैपेसिटी नहीं। तो उन्होंने मेरे को बताई, मैं ये नितिन भाई को बहुत अच्छी तरह से जाता हूँ, जाके मिल ले। वो आया मेरे साथ बैठा, बातें की, 4 साढ़े 4 5 घंटे कहाँ हो गए मालूम नहीं पड़ेगा। और उसने उसका फॉरेन का कस्टमर को साथ फोन पे बात करवाई, मेल एक्सचेंज हुआ, कोटेशन दे दिए। उसका कस्टमर वहां से आया, मेरा प्लांट विजिट किया, ऑडिट किया, और सर आज हम लास्ट 8 महीने से काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। बोलिए, तो ऐसे ही जमा होता है। So we have with us सुभाष जी। कैसे हो सुभाष जी? नमस्कार। नमस्कार सुभाष। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप एक्सपर्ट लोग हैं, आई जस्ट वांट टू नो कि एमएसएमई का इफ यू कैन जस्ट गाइडलाइन, क्या बेनिफिट है प्रिंटर्स को, और आगे फ्यूचर तो बहुत ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लग रहा है, बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन है अभी, बिकॉज वी वर्क जनरली फॉर आज की 2-3 घंटे का काम है हमारे पास सारा, और गवर्नमेंट को बजट भी नहीं है देने को, बजट भी दे रिड्यूस 50% था, अभी 15% कर दिया बजट, तो पिछला पेमेंट क्लियर कर लेंगे, आगे बजट के पैसे लाएंगे। तो व्हाट डू यू से, वेयर डू वी सी द फ्यूचर ऑफ प्रिंटिंग इंडस्ट्री? प्रिंटिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर हमेशा ही ब्राइट रहा है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर कन्वर्जन्स। अब देखो, इफ यू टॉक अबाउट ओल्ड डेज, लेटर प्रेस था, लेटर प्रेस के बाद ऑफसेट आ गया, तो द पीपल हु हैव नॉट अडॉप्टेड ऑफसेट दे आर फेसिंग द क्रंच। ऑफसेट के बाद क्या हुआ, देन डिजिटल, थोड़ा बहुत डिजिटल आ गया। अभी क्या, देयर आर चेंजेस, फास्ट प्रिंटिंग आ गया। इफ यू नॉट स्टार्ट अडॉप्टिंग दोस, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच, अभी हमने पिछले दिनों 3D प्रिंटिंग पर लेक्चर कराया था, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक पर लेक्चर कराया था। We have to change is the name of the universe। अगर प्रिंटिंग श्रिंक हो रहा है तो देखो पैकेजिंग बढ़ रहा है। पैकेजिंग, अगर आप पुराने जमाने में चलो, पैकेजिंग अलग अलग थोड़ा था, प्रिंटिंग का हिस्से तो था। No, the printing is increasing. We can adopt the packaging. All the जितने भी पैकेजिंग, नितिन भाई कुछ करें, नितिन भाई। सॉरी कमल जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अमित जी, मैं आपको थोड़ा ये चीज बताना चाहता हूँ सर। यू नो, आई वाज वेरी मच अगेंस्ट फॉर यूवी प्रिंटिंग। ओके। आज मैंने सबसे लेटेस्ट यूवी मशीन लगाई है 7 कलर विद 7 इंटरडक्ट। बताइए, कंप्लीट यूवी प्रेस केबीएस लगाई। क्या है सर, हमारा जो बिजनेस फॉर्मेट रहता है ना, जैसे 100 में से 65 to 70% यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टैंडर्ड बिजनेस। ओके। बैलेंस यू शुड डू सम इनोवेशन व्हिच कैन टेक केयर ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अगर 100% आप सिंपल जॉब पे रहो तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। ये एक बात सही है। Okay. 70% to 50% रेशियो इज अ मस्ट। Okay. कौन सी मार्केट फ्लरिश हो रही है, कौन सी नीचे जा रही है, किसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कौन सी नई कंपनियां आ रही, हर एक चीज नेट के ऊपर अवेलेबल है। हमें जो हमारे जमाने, पहले के जमाने में जो क्या कुर्सी पे बैठे, फोन आ गया, 4 बिजनेस मिल गया, वो कंसेप्ट गया सर। हमें एक्टिव होना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा। काम है, ऐसा नहीं है काम नहीं है, वरना हर साल इतनी पेपर मिलें नहीं आती, हर साल पेपर का कंजम्पशन नहीं बढ़ता, हर साल नए मशीनरी लोग नहीं बाई करते, हर साल प्रिंटिंग इंडस्ट्री का इतना ग्रोथ नहीं होता। आज पैकेजिंग, अभी ये 3 महीना 4 महीना कोविड की वजह से भूल जाओ, पैकेजिंग का ग्रोथ है 12% पर एनम। आप सोचो, कहाँ ने कहीं तो जा रहा है। राइट। आज बंबई में रिक्वायरमेंट नहीं है, पुणे में है, पुणे में नहीं है, दिल्ली में है, दिल्ली में नहीं है, कलकत्ता में है, बट कहीं ना कहीं तो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप कलकत्ता में किसी को पहचानते हो, आप दिल्ली में रह रहे, कलकत्ता वाले को बोलो मैं तेरे को काम करके दे दूंगा। कलकत्ता वाले प्रिंटर से आपकी अच्छी दोस्ती है, उसको बोलो मैं तेरे को काम ला के देता हूँ, तू करके दे, आप दोनों बन गए पार्टनर, बात खलास। राइट।
तो इनोवेशन की डायरेक्ट जरूरत में ग्रो इज अ मस्ट, मिलके काम करना, और सेकंड इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। आज दुनिया के सब कंट्री कोविड का वैक्सीन लगाने में पड़ गई है, जो नहीं काम किया वो भी ढूंढने में लग गई है सर। एक्चुअली जान पे आती है तो आपको हर एक को करना पड़ता है, तो क्यों राह देखनी जान पे आने तक, क्यों नहीं काम करते? नितिन भाई जो आप कर रहे हो, आई ऑलवेज से देयर आर, आपके प्रिंटर के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता तो आप बड़ा करो, यानी कि बी कम्पिटिटिव आपके एरिया में नहीं, आपके शहर में भी नहीं, आपकी स्टेट में भी नहीं, आपके कंट्री में भी नहीं, इंटरनेशनली ट्राई टू बी कम्पिटिटिव इफ इट इज पॉसिबल। कम्पिटिटिव के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। डू यू हैव द कैपेसिटी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन? दिस इज वन वे व्हिच वी आर टॉकिंग टुडे। इफ यू कांट डू इट, टुगेदर वी कैन डू इट। इफ वन कांट, एंड अदर वेज टू डू डिफरेंट। और डिफरेंट में क्या होगा, आपकी सेल तो बहुत ज्यादा नहीं होगी लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। आपकी टर्नओवर कम होगी, टर्नओवर 200-500 करोड़ नहीं होगी, वो शायद 5-6 करोड़ ही हो, लेकिन 5 में 2 करोड़ आपको बचेगा। मेरा एक बम्बई में एक प्रिंटर है जो हर साल अवार्ड भी लेता है, बड़े बड़े अवार्ड लेता है। उसकी प्रेस महीने में 8 दिन चलती है। उसका टर्नओवर सिर्फ महीने का 50 या 60 लाख का है, उसमें से 30 लाख प्रॉफिट लेता है। बताइए आप क्या कौन सी बड़ी बात है? बताइए। चलो 30 लाख महीने का लेता है, 8 दिन चलाता है साहब, बताओ। अमित जी दोनों ही रास्ते हैं, या तो डिफरेंट करो। अहमदाबाद में वो जो मार्बल आर्ट है, वो एक पेंटिंग 3-3 लाख की बेचता है, एक पेंटिंग, 1 शीट प्रिंटेड ऑर्डिनरी विद स्क्रीन प्रिंटिंग, कुछ नया नहीं है। जब धीरूभाई अंबानी की नई हॉस्पिटल खुली थी ना, ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल खोली थी ना, यस यस साहब, उसको सिर्फ 25 बुक बनाने का ऑर्डर मिला था जी। 25 बुक छाप के उसने बनाई, जो क्वालिटी बनाई, उसको मुंह मांगे पैसे मिले। बिल्कुल। सो एक्चुअली 2 रास्ते, अभी हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता तो बंद होना ही है सर। बड़ी सिंपल है, अगर आप कॉस्ट से सस्ता बेचोगे बंद हो जाओगे, अगर सस्ता नहीं बनाओगे तो भी बंद हो जाओगे। द थिंग इज द अदर पर्सन विल मेक चीप और आप कंपीट नहीं कर पाओगे। देन द वे इज, प्रिंटर से ज्यादा, मैं तो प्रिंटर को विश्वकर्मा कहता हूँ, प्रिंटर से ज्यादा क्रिएटिव कोई नहीं है। कोई इंजीनियर भी क्रिएटिव इतना नहीं जितना प्रिंटर क्रिएटिव है। तो यू कैन क्रिएट मेनी थिंग्स। इट्स नॉट, एक आइडिया कुछ नया नहीं है, जो आप सोचने लगोगे हो जाएगा। आप मार्केट में जाते हो, देखते हैं रेस्टोरेंट में वो टेबल मैट नहीं है, या छाप के देता हूँ, देख तू साथ ही बेच कर दे, सस्ता पड़ेगा। तो आइडिया तो आएगा। आइडिया यू हैव टू, आइडिया क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कुछ नहीं सोचते, जो आप सोचोगे तो आइडिया बन गया। कुछ नया बाहर से नहीं आना, आपको इनोवेटिव बनना जरूरी है सर। नहीं, इनोवेशन जब हम इनोवेशन कहते हैं, कोई इनोवेशन को इनोवेशन नहीं है, इनोवेशन इज थिंकिंग ओनली। इफ यू थिंक डिफरेंटली इट्स इनोवेशन। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कैलेंडर बनाया, ये सारी लाइफ चलेगा। ये कट कर दी विंडो तो क्या है, ये डेटें तो वही रहेगी हर महीने। जब मेरे ख्याल में ये 4-5 साल पुराना, साल नहीं लिखा, तो सिंपल है। तो इनोवेशन तो हर जगह पर है। यू हैव टू क्रिएट द थिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सो दैट इज, अभी इस तरह का कैलेंडर वो बड़े लोग नहीं बनाएंगे, तो आप ऐसा बना के पैसा कमा सकते हो। आगे 2 ही रास्ते हैं, या तो आप डिफरेंट करो या फिर सस्ता बनाओ। सस्ता बनाओ, सस्ता बेचो नहीं। जनरली क्या होता है, सस्ता बेचने से दुकानें बंद हो जाएंगी, सस्ता बनाना पड़ेगा। सस्ता बनाने में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, यूज द फुल कैपेसिटी ऑफ योर मशीन। इफ यू हैव द मशीन, ट्राई टू यूज द फुल कैपेसिटी। फॉर दैट यू मस्ट हैव सम पर्सन, सम फ्रेंड्स, क्या मेरे पास काम कराओ ताकि मेरी मशीन फुल कैपेसिटी में यूज हो, या उसकी मशीन फुल कैपेसिटी में यूज हो, दोनों को सस्ता पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है। अमित जी आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर समझो आपके पास एक 4 कलर है, एक 6 कलर है, एक पंचिंग है, पेस्टिंग है, यूवी है, व्हाटएवर मिला के आपको मालूम है मोटा मोटा हर महीने आपका खर्चा कितना है, ठीक है? और वो खर्चा, नेटवर्क का इशू आ रहा है मेरे यहाँ। ओके, आपको मालूम है आपका हर महीने का खर्चा कितना है, ठीक है? हर महीने आपको मालूम है आपका खर्चा कितना है, और हर महीने आप कितनी आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हो वो भी मालूम है। आपका खर्चा 100 रुपया है और आपकी कैपेसिटी 70% ही यूटिलाइज हो रही है, यानी 100 रुपए का खर्चा आप 70% यूटिलाइजेशन यानी 130 का खर्चा कर रहे हो, कमल जी, ठीक है? तो आप एक काम करो, वो 30% एक्स्ट्रा कैपेसिटी किसी को कम भाव में दे दो। बिल्कुल वही तो बात है, किसी को कम भाव में दे दो, तो ऐसा भी आपका वो खर्चा निकल रहा है, और आपका पूरा खर्चा निकलने के बाद पैसा भी बचेगा, तो आप अपनी खुद की प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम कर सकते हो और मार्केट में कम्पीट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नितिन शाह जी का,
कि कोविड-19 में जो आपने ज्ञान बांटा है ना, तो ज्ञान फैलता जा रहा है। हम सुनने वाले 400 होते हैं, उसका फायदा 4000 को हम आगे पास ऑन कर रहे हैं। और नितिन शाह जी की आज मैं बड़ा प्रभावित हुआ, नितिन शाह जी ने जो काम की बातें बताई। नितिन जी, सबसे बड़ी बात है जो आपने बात करी, आदमी को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आप तरक्की नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। विश्वास करना एक बहुत बड़ी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज से 25-30 साल पहले मैं एक यूनिवर्सिटी की प्रिंटिंग करता था, तो मेरे पास जब मेरा प्रेस छोटा होता था, उन्होंने मेरे को बोला 2 ट्रक हम आपको पेपर भेज रहे। मैं एक ट्रक दूसरे प्रेस में उतार देता था, वहीं से तैयार होकर चला जाता। तो ये विश्वास करना पड़ता है, तो विश्वास नहीं करेंगे हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी एक इंडस्ट्री जो अभी कमल जी बता रहे थे, स्मॉल प्रिंटर्स इसमें ज्यादा है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन होता है, काफी चेंजिंग आ गई। तो हर जगह का देखिए अपना अपना सिस्टम है। दिल्ली में आज से कोई 40 बरस पहले सारे प्रिंटिंग प्रेस शहर में होते थे, तो गवर्नमेंट ने क्लस्टर डेवलपमेंट किया। उसमें गवर्नमेंट ने नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम प्रिंटर्स को जगह दी, तो वहां पर बड़े बड़े प्रेस लगने लगे। जो भी आया जी, मैं बाहर से आता था, तब बाहर की प्रिंटिंग में दिल्ली में ही होती थी। हम लोग नारायणा जा रहे हैं प्रिंटिंग कराने, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नारायणा जा रहा हूँ। आज नारायणा में इतनी अच्छी अच्छी प्रेसेज है और सब लोग एक दूसरे पे विश्वास करके काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास अगर एक मान लीजिए ऑर्डर आया, मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मैं उसकी हेल्प लेनी पड़ती है और माल सप्लाई हो जाता है। बड़ा विश्वास है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं स्मॉल प्रिंटर्स के बारे में बात बता रहा हूँ। ये जो कोविड-19 के अंदर बाद में काफी बिजनेस के ऊपर बड़ा फर्क पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। मैं स्मॉल प्रिंटर से अपील करता हूँ, मैंने ये नागालैंड में भी बोला था, जब मैं नागालैंड में गया था, वहाँ की एसोसिएशन में मैंने बोला था कि जो स्मॉल प्रिंटर्स हैं, जो टाइनी प्रिंटर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइनी प्रिंटर, वो अपने आप को प्री प्रेस में ज्यादा अपने को उसमें ध्यान ज्यादा दें। प्री प्रेस में आपके पास 2 कंप्यूटर है, एक और कंप्यूटर लगाओ, उसमें 2-3 डिजाइनर बैठाओ, आप अपना प्री प्रेस सिस्टम ठीक करिए। प्री प्रेस अगर आपके पास ठीक है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं दिल्ली में जिनका प्री प्रेस अच्छा है, कोई इन्वेस्टमेंट में लेस देन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उसको 3 आदमी बिठा रहे हैं, आप वो डिजाइनिंग करना, प्रिंटिंग सीडी भेजते हैं, प्लेट बनती है, छप के माल चला। तो स्मॉल प्रिंटर के लिए प्री प्रेस में उनको डाइवर्सिफाई ज्यादा करना चाहिए। मैं कमल जी एक बात बताऊं, मैं 85 में वेनिस में गया, इटली में। तो इटली में पूरा आपको पता, आप तो काफी घूमे, पानी के अंदर सारा है वेनिस। तो पानी में एक किश्ती में थे, पेपर उतर रहा था कि मेरे को बड़ी पूछने की इच्छा है, वो प्रेस में कहीं पेपर जा रहा है, मैं देखूं पानी में वो 8 पेपर उतर के पूरा जा रहा है। तो मैं अंदर वो प्रेस में गया, मैंने भाई साहब आपसे ये कहता है, ये लंदन से पेपर आया है, हम प्रिंटर लोग कहीं काम मांगने नहीं जाते, ये कंपनी को ऑर्डर बुक करती है, हमारा यहाँ जितना काम बाहर की कंपनी बुक करती है, हम लोग तो अपनी स्पेसिफिकेशन देते हैं, छाप के भेज देते हैं। तो हमारा तो कमल जी, हमने एक और बहुत बड़ा एक प्रिंटर्स ब्रदरहुड डेवलपमेंट की है, ये एसोसिएशन का फायदा है। जितना कमल जी आप, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, जितना ये कोविड-19 में आपने हमें ज्ञान दिया है, और हमें, मैं आगे ज्ञान आपका बड़ी बात पास करता अभी, मैंने कहा तुम भी सुना करो भाई, कमल जी की कॉन्फ्रेंस आप सुनी नहीं सुनी, ये ज्ञान देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। इसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। जो किसी को, छोटे छोटे आदमी को आप ज्ञान बांट रहे हैं, वो सुनता है, आगे पास ऑन करता है। तो मैं एक बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं, नितिन शाह जी ने अपना एक्सपेरिमेंट, नितिन शाह जी की स्पीच से मैं बड़ा प्रभावित हूँ, मैं 3rd टाइम इनको सुन रहा हूँ। तो ये बॉम्बे मास्टर प्रिंटर के प्रेसिडेंट है, बड़ा अच्छा है, इनसे मेरे को इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम की बातें बताई। तो कमल जी, स्मॉल प्रिंटर के लिए तो आप थोड़ा ये करिए कि वो थोड़ा सा, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर मार्केटिंग नहीं है। जो हमारे कस्टमर आ गया काम छाप दिया, आ गया काम छाप दिया, तो प्रिंटर्स का क्या है, मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग के आदमी नहीं रखता। आप मोटर मार्केट्स में चले जाओ, दूसरी मार्केट में चले जाओ, मार्केटिंग के लोग हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाओ, मार्केटिंग कितनी है, प्रिंटिंग प्रेस में 10 करोड़ की मशीन लगा देगा, मार्केटिंग का आदमी नहीं रखेगा। हमारे लोगों की मार्केटिंग नहीं है,
उसके बाद क्या होता है यार, मशीन लगा ली, काम नहीं, हाँ तेरे पास काम है, तेरे पास क्या, लोगों से हम लोग अपनी मार्केटिंग इंप्रूवमेंट नहीं करते। तो स्मॉल प्रिंटर्स को तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखो आजकल आप लेबर भी कमी है, मशीनें भी रुकी पड़ी हैं, तो आप नितिन शाह जी को बात मानिए, एक दूसरे पे विश्वास करिए, आप ऑर्डर बुक करिए, आप अपनी देखो मार्केटिंग तो आपने खुद करनी है, आप जहां जहां आपका सोर्स है काम डेवलप करिए, कम डिजाइनिंग सेक्शन प्री प्रेस अपना रखिए। मेरा एक दोस्त है नारायणा के अंदर, उसने साहब 3-4 प्रेसों को डेली काम देता है, सिर्फ उसने कंप्यूटर लगा रखे, घर के नीचे ऑफिस बना रखा है, वहां 3-4 लोगों को काम देता है, 3-4 प्रेसों में उसका काम चलता है। मैंने तो कमल जी, हमने क्या किया, एसोसिएशन के यही तो फायदे हैं। एसोसिएशन में क्या लगता है, पहले हम मेंबर बनता है, फिर फैमिली। मैंने तो यहाँ अपने प्रिंटर ब्रदरहुड डेवलपमेंट करके पिछले 15 साल से हम थर्ड फ्राइडे को मिलते हैं। वी आर अबाउट 39 उसमें मेंबर हैं आज तक। उसकी हम 39 मेंबर क्या हर महीने में एक बार मिलते हैं, डिनर करते हैं, जिसकी जो प्रॉब्लम होते हैं हम काम भी उस वहां से बिजनेस मिलता है लोगों को। तो ब्रदरहुड से क्या होता है, बिजनेस भी मिलता है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं, हमें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, देखो ये लाइन हमारी इंडस्ट्री इतनी है कि एक दूसरे के ऊपर हेल्प लेने के बिना काम नहीं चलता। बहुत सारे प्रिंटरों के अंडर वन रूफ करते हैं, ये तो काम करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप कमल एक अपील करिए स्मॉल प्रिंटरों के लिए करिए कि स्पेशली इनको ये करिए, अपनी थोड़ी मार्केटिंग, आप मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग ये बात, और अपनी मैं स्वाति मार्केटिंग की बात करता हूँ, पहले नितिन जी से बात सुन लें। नितिन जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारे लोगों की मार्केटिंग नहीं है। यस यस। हमारे इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज है, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां। जरूरी नहीं कि हर एक की प्रोडक्ट को खुद ही बनाते हैं, आउटसोर्स करते हैं, छोटे छोटे कंपनियों से बनवाते हैं। हमारे पतंजलि देखो इतना बड़ा है, हर चीज तो खुद नहीं बनाते, बहुत चीज बाहर से भी बनवाते, अपना नाम लगाते। बट उसमें होता क्या मालूम है, बड़ी कंपनी भी आगे किसी ना किसी को तो माल बेचते हैं। अगर उनका माल सही नहीं रहेगा तो उनका माल कोई नहीं खरीदेगा। बट उनका माल 100% स्टैंडर्ड होने के लिए कुछ नियम बनाते हैं। अभी आपको मैं एक बताता हूँ, मैं फार्मा का काम करता हूँ, मुझे उनकी गाइडलाइन एसओपी फॉलो करनी पड़ती है। ओके, उनका क्वेश्चनर में एक क्लॉज होता है, आप आउटसोर्सिंग करते हो क्या? तो लोग डर जाते, लिख देते नो वी डोंट डू आउटसोर्सिंग। नहीं, वैसा नहीं होता है। वो लोग भी तो बाहर बनवाते हैं ना दवाई। वो लोग क्या बोलते हैं, अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो जो नॉर्म्स आप फॉलो करते हो, आप देखिए कि आपको सप्लाई करने वाला भी वो नॉर्म्स फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो आप अगर आपके दोस्त प्रिंटर से काम करवा रहे हो और आप वो फार्मा कंपनी को दे रहे हो, खाली आपको इतना देखना है कि जो नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हो, आउटसोर्सिंग के जो अलग नॉर्म्स है वो सामने वाला फॉलो कर रहा है कि नहीं। वो फॉलो कर रहा है तो आप उससे लेके उसको दे दो। तो उससे 2 फायदे हो गए, आपकी कैपेसिटी नहीं है फिर भी आप दूसरे से करवा के दे सकते हो, और आपका दूसरा दोस्त प्रिंटर भी सुधर जाएगा, वो भी समझ जाएगा अरे ये नॉर्म से काम करेंगे तो काम मिलता है। यू नो, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्यों बनाया जाता है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितना भी आपका प्रोडक्ट बनता है सब एक सरी का हो, विद इन AQL, एक्सेप्टेड क्वालिटी लिमिट। तो वी हैव विद अस बाला साहब जी, आप कुछ कहना चाहोगे? अभी मैं फर्स्ट में क्लस्टर के बारे में बोलूंगा। महाराष्ट्र में अभी नियर अबाउट 708 या क्लस्टर स्टार्ट हुए हैं। जी जी। दूसरी बात है, एक हमारा उदगीर गांव है, उदगीर गांव में क्लस्टर चल रहा है। उन्होंने अभी सैंक्शन हुआ, सब हुआ, लेकिन अभी तक उनको पैसे नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, गांव में जो प्रेस थे, पहला जो चेयरमैन था उन्होंने अपना प्रेस उधर शिफ्ट किया, उसके साथ और 2-3 जने एक इकट्ठा किया, और अभी वो हर एक का काम अलग अलग से चला रहे हैं। दूसरा एक जो भीमाशंकर में एक क्लस्टर है, जी जी, उन्होंने ऐसा किया कि जितना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके माफक उसका दर लगा रहे हैं। समझो अभी भी 5 लाख जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए जो समझो 1500 रुपए प्रिंटिंग का है, और जो 25 लाख रुपए है उसको उसमें कंसेशन देके 1200-1300 लग रहा है। और दूसरी बात अभी है, अभी महाराष्ट्र में
बहुत से छोटे छोटे गांव में प्रेस स्टार्ट हुए। जी जी सबने अभी सब जो हमारे मुद्रक है, मैंने कल आपको उसका एक थोड़ा सा वृत्त जो था जी जी। न्यूज आपको पास भेजी थी। हाँ जी हाँ जी, उसमें क्या किया है, सब लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है कि अभी जो हम रेट करेंगे सबके साथ एक ही होगा। जी अभी ये पूरे नांदेड़ में से स्टार्ट हुआ, कल सतारा में स्टार्ट हुआ, और सबने प्रतिज्ञा ले रही है कि अभी हम कुछ कम नहीं, जितना कम में दाम में करेंगे और लोगों को ज्यादा जितना रेट है जो हम डिसाइड किए है उसी रेट से देंगे। उसे क्या होगा, अभी कंपटीशन नहीं होगा। इसके बारे में सब लोगों ने कल अपनी शपथ ली है, हर ने उसका स्वागत किया है और अभी स्टार्ट हुआ है। महाराष्ट्र मुद्रण परिषद ने वो न्यूज हर हमारे जो एसोसिएशन है उसमें डाल दी है, और सबने इसका ये किया है कि हम इसके बारे में सोच के ऐसा ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसके अंदर एक ही दिक्कत आती है कि जिसके पास काम नहीं होता उसको दिक्कत अभी है। हाँ देखेंगे, काम भी बांटो। अभी तो स्टार्ट किया है, अभी हाँ देखेंगे। अच्छा है। तो और कुछ नितिन भाई और कुछ कहना चाहेंगे? बस ओके सर, थैंक यू वेरी मच। रहो। अगर कोई अटेंडेंस कुछ बात पूछना चाहे तो स्टिल वी हैव 5 मिनट्स। सर मेरी महाराष्ट्र वालों से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, महाराष्ट्र मुद्रक वालों से। हाँ नहीं पीछे सर। इन्होंने जो ये क्लस्टर बनाया और जो इन्होंने एसोसिएशन क्रिएट की, उसमें सबने स्वागत किया कि भाई एक रेट फिक्स करेंगे। लेट्स से कोई क्लॉज डाला है कि अगर कोई इसमें से बाईपास कर जाता है या सस्ते रेट पे काम कर रहा है, उसका कोई क्लॉज डाला है इन्होंने, किसको कोई पैनलाइज करेंगे या कोई इस तरह का क्लॉज है इसके अंदर या भला साहब बताइए। मैं बता रहा हूँ अमित जी, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जैसे सतारा में या कुछ सिटीज में कर दिया कि रेट फिक्स हो गए, अगर कोई उससे कम रेट में काम करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तो देख लेंगे, वो एसोसिएशन उसका कुछ ना कुछ डिसीजन लेगी उसके बारे में। हमारे मेंबर रखना है नहीं रखना है, उसको थोड़ा सा जो सर नॉन मेंबर है जो मर्जी रेट ले सकता है। हाँ वो तो होता है, लेकिन एसोसिएशन जितना बढ़ाने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं ना, जितने जितने लोग हैं हम उसको ट्राई ऐसा करेंगे कि जितने वहाँ है छोटे बड़े वो एसोसिएशन के साथ आ जाइए, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। गुड अच्छी बात। बाला साहब से क्वेश्चन है। बाला साहब मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग स्टैंडर्ड रेट कर दोगे, ठीक है? जिसका मार्केटिंग स्ट्रांग रहेगा वो काम लाएगा, जिसके पास मार्केटिंग वीक रहेगा वो काम नहीं ले पाएगा। तो वैसे में वो आदमी डेफिनेटली रेट कम करके काम लाने वाला ही है। वो अपना रोजी रोटी देखे या एसोसिएशन का नियम देखे। यस सर, देयर इज आल्सो अ डिफरेंस ऑफ सिंगल कलर एंड 4 कलर प्रिंटिंग प्रेस आल्सो, उनका भी रेट वेरी करेगा। हाउ डू यू कंपेयर? पीएमपीएम में मेंबर्स लोग के लिए क्या किया है बताओ? जी जी हमने उनको किसी को गाइड नहीं किया है कि आप ये रेट से काम करो। अच्छा, हमने उनको एक गाइडलाइन बना के दिया है कि आज की तारीख में कोविड के सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको प्रेस चलाना है तो आपकी पर डे पर आवर क्या कॉस्ट आ सकती है। अच्छा, आपके फिक्स कॉस्ट जो रहते हैं वो 24 कलाक के हिसाब से होते हैं, बट आप जला रहे हो सिर्फ 8 घंटा 10 घंटा, ठीक है? तो वो फिक्स कॉस्ट आपके 8-10 घंटे में डिवाइड होने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया है, सैनिटाइजेशन का कॉस्ट बढ़ गया है, मास्क देना है, लिमिटेड आदमी आ रहे हैं, बाहर से आदमी ले रहे, ज्यादा कॉस्ट से ले रहे हैं। तो आप लोगों को कस्टमर से सर्टेन परसेंटेज एक्स्ट्रा मांगने को बोलना चाहिए। अच्छा, आज मेरा रेट समझो एक कस्टमर के लिए 1 रुपया है। अगर हम एसोसिएशन डिसाइड करते भाई तेरे को तेरे कस्टमर से 10 टका लेना है, 12 टका लेना है, तो जिसका 1 रुपया उसको 1 रुपया 20 उसके ऊपर 12 रुपया मिलेगा। जिसका 80 पैसा है उसको 80 पैसा के हिसाब से 12 टका मिलेगा। बट आप हर एक को सेम स्लैब रेट पे नहीं कर सकते। आज मेरी छोटी मशीन है 20-30 की है और किसी के पास 105 साइज की मशीन है, तो वो पर 1000 का रेट तो मैच होने वाला ही नहीं है। उससे अच्छा आप लोग को डिसाइड करना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, टायर 2 टायर 3 सिटी के हिसाब से आज की तारीख में आपका रनिंग फैक्ट्री के लिए क्या कॉस्ट आ रहा है।
Okay, on that basis you should ask your printer to demand this much increase. हमने क्या किया अपनी एसोसिएशन में एक बुकलेट प्रिंट की है ये वाली। हाँ, हर मशीन इसके अंदर है कि आपका पर आवर कॉस्ट क्या है। हम नहीं कहते आप जो मर्जी चार्ज करो, आपकी मर्जी है। जैसे इसके अंदर 15-20 की मशीन, 20-30 की मशीन, उससे बड़ी मशीन, हेडलबर्ग कौन सी मशीन है, उसका पर आवर खर्चा आपका कितना आ रहा है, वी हैव कैलकुलेटेड एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड दिस बुक टू आवर मेंबर्स कि आपकी कॉस्ट है, आप मेरी तरफ से फ्री दो, मेरी तरफ जो मर्जी लो, लेकिन कॉस्ट अगर इससे कम ज्यादा है तो हमें बताओ, हम ठीक कर लेते हैं फार्मूला। तो दैट इज द वे टू मतलब एक्चुअली एजुकेट ये करें कि आपकी कॉस्ट क्या है और कॉस्ट को कम कैसे करना है, उसके बाद चार्जिंग उसकी मर्जी। आज की सिचुएशन के हिसाब से पूरे इंडिया में अगर आप देखो हर एक प्रिंटर की कॉस्ट 12 से 15% बढ़ रही है। वेरी सिंपल, मोटा बोल, बहुत सिंपल। तो आपके हर प्रिंटर को उसके कस्टमर से 12 से 15% डिमांड करनी है। फिर बाद में हर एक को अपना भाव बढ़ा के मिलने वाला है, फिर हर एक की जो कैपेसिटी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम लाएगा। वेरी सिंपल, बट एटलीस्ट जो आदमी जितना काम करेगा उसको इतना टका से ज्यादा मिलना चाहिए। मालूम है अगर सबका रेट फिक्स करोगे ना तो अंदर अंदर झगड़े बढ़ेंगे। सर एक छोटा सजेशन दूं, बहुत छोटा सजेशन देता हूँ। मतलब आप इसमें कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिवाइड कर देते हैं कि आदमी का इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका लेबर कितनी है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, वो अपना इन्वेस्टमेंट डाले उस फॉर्मूले के अंदर। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना देते हैं, अपना कॉस्ट डाले, इन्वेस्ट मैंने 10 लाख करा, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख करा, और उसकी लेबर कितनी है और एवरेज कॉस्ट उसकी लेबर की क्या आती है, एंड खर्चा कितना। उससे वो अपना एक पर डे वो खर्चे निकाल ले, पर डे की कॉस्ट या पर आवर की कॉस्ट मेरी ये आती है और मुझे इससे ऊपर चार्जेस रखने, फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। इस तरह का अगर हम कोई फॉर्मूला डिवाइड कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट। मतलब वो एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क हो जाएगा सभी के लिए। ये सर ये किया हुआ है, यही तो किया हुआ है। देखिए हर मशीन का लिखा हुआ है, यही फार्मूला है। और आपका कौन सी मशीन है, इसका पीडीएफ शेयर कर देना सर सबको। ये बना हुआ पूरी मशीन का है, आप देखोगे ना ये वाला जो पेज है, हर किस्म की मशीन है इसके अंदर। फिर बाकी खर्चे हैं, ये हर मशीन, सिंगल कलर, 2 कलर, सिंगल शिफ्ट चला रहा है, 2 शिफ्ट चला रहा है, कौन से साइज की मशीन है, कैलकुलेट किए हैं। वी गिव दिस कैलकुलेशन टू ऑल मेंबर्स कि आप चाहे फ्री बैठे हो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी कॉस्ट ही है। बहुत बढ़िया सर। अगर मैंने कोई ये पेन मैंने 2 रुपए का खरीदा, मैं किसी को 1 का बेचूंगा ना तो 1 रुपया मेरे को पता कहीं से लेना है। तो अगर मेरे को पता ही नहीं कितने का है, तभी तो मैं कह रहा हूँ यू मस्ट नो योर कॉस्ट। हमने सेमिनार यही किया था, उदय भाई ने बहुत अच्छा, दैट वाज अ वेरी गुड सेमिनार, कि आपकी कॉस्टिंग क्या है, कैलकुलेट द कॉस्ट, फिर उसको कम करने की कोशिश करो। सही है। अगर मार्केट रेट आप चेंज नहीं कर सकते, कॉस्टिंग कम करो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल है, और कोई ड्राइव है ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुभाष जी और नितिन भाई, आपको परेशान किया आज, जाना था आपने। थैंक यू नितिन, thank you Nitin Shah ji, thank you. I would like to thank all the attendees. Very good presentation Nitin ji, very good, informative। और जैसे आपने कहा था we are Hindi English mix किया हमने, ट्राई किया लोगों को समझ आए, पीछे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वाला साहब थैंक यू वाला साहब। ओके अमित जी, थैंक यू so much thank you so much right, अच्छा जी, थैंक यू सर, फिर मिलते हैं and we are going to do this type subject again. Thank you very much sir, thank you।